Hello students, good morning all of you. Today I will discuss about exercise 9.1. Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. टावर की टॉप से और ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 30 मीटर इट इज गिवन 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. So first of all make the given information according to given information make a figures find the height of the tower. Towers की height find out करना है यहाँ पे. So let AB be the height of the tower. H put कर लीजिए height of tower and C be the point on the ground. The distance between the points and the foot of the tower is which is given 30 meter. Now join this point to A and inclination यानी ये angle is given 30 degree. Now find out H. So first of all right here let AB is equals to H meter height of the tower. हाइट ऑफ टावर ए बी और जिसको हमने क्या पुट किया है एच. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बी सी ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन बी सी. देखिए आपका एंगल यहाँ लाई कर रहा है. सो एंगल अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर. सो यानी आपने क्या लिखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस adjacent side of angle. Adjacent side of angle is base. So P upon B. So it means ये P upon B क्या होता है tangent theta और here theta is 30 degree. Theta is an angle. So you putting the value of AB here. AB is H and BC is 30. Tan 30 value is 1 by root 3. Now cross multiply. Then we get h root 3 is equals to 31 जा 30. So h को ये ट्रांसफर कर दीजिए आप 30 अपॉन में रूट 3. Now you write the 30 in form 10 into 3 upon root 3 or 3 write in form root 3 into a root 3 divide by root 3. Now cancel by root 3 then we get 10 root 3 meter. So height of the tower is 10 root 3 meter. Now next question is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Ground से 60 meter above है. Kite की जो height है perpendicular जो distance है kite से which is given 60 meter. The string attached to the kite is temporarily टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड की किसी पॉइंट से काइट की जो स्ट्रिंग है वो टाइट की गई है बांधी गई है. द इंक्लिनेशन मीन्स एंगल ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड. ग्राउंड और स्ट्रिंग के साथ जो एंगल बना है वो 60 डिग्री बना है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अंदर कोई गांठ नहीं है. सो इसके अंदर आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई काइट है और जो कि ग्राउंड से जिसकी हाइट गिवन है 60 मीटर. ओके. नाउ टेम्परेरी कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर. दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल. लेट ए बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड ये स्ट्रिंग हो जाएगी यहाँ से इसके पास जो कि इस काइट को बांधी गई है. और स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल गिवन है वो आपके पास है 60 डिग्री. ओके. नाउ दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. सो गिवन द मार्क द पॉइंट्स A B C.
फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट मीन्स AC फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन height of kite from horizontal BC is equals to 60 meter. Let length of string x put कर लीजिए. Let AC is equals to x be the length of string. Okay, now use T ratios BC अपॉन में AC. कोई भी T रेशियो आप यूज अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पे BC अपॉन एंगल अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कीजिए. यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल राइट कीजिए. यहाँ पे जिस ट्रायंगल में हमें T रेशियो अप्लाई करना है BC अपॉन AC. BC इज द परपेंडिकुलर और AC इट्स हाइपोटेन्यूज. सो इट मीन्स P/H हो गया है. और P/H क्या होता है? साइन थीटा. साइन थीटा इज 60 डिग्री. Value of BC is 60 upon AC is x and sin 60 is square root 3/2. Now you cross multiply, then we get x root 3 is equals to, इसको multiply कर दीजिए 120. So x is equals to 120 upon में root 3. Now you rationalization by root 3. root 3 से आप rationalization कर सकते हो. Multiply by root 3 in numerator and denominator. Then we get 120 root 3 upon में root 3 और root 3 product 3 से cancel कीजिए. 3 4 जा. Then we get 40 root 3 meter length of string. Now question number 6 is a very important question. Question number 6 is 7. These are very important questions. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. आपके पास एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है जो कि वर्टिकली स्टैंड करते हैं विद हॉरिजेंटल. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60. 30 से 60 इंक्रीज हो जाता है. ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसका एंगल पहले 30 बनता है, फिर बिल्डिंग की तरफ जैसे ही वो चलता है तो उसका एंगल 60 हो जाता है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस उसने चली वो आपको फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए बिल्डिंग 30 मीटर टॉल हियर इन फिगर. Let this is the building, AB be the building whose height is 30 meter. It is given. Now a 1.5 meter tall boy is standing from the foot of the building. यहाँ पे जैसे ये 1.5 मीटर बॉयज की जो हाइट है वो 1.5 मीटर इट इज गिवन. यहाँ पे बॉयज स्टैंड कर रहा है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ नॉट गिवन. सो जैसे यहाँ ये बॉयज़ है और ये इसकी आइज है. यहाँ से इस आइज से जब वो इस टॉप को देख रहा है सो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. यहाँ पे लाइन ऑफ आपकी देखने का हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और विच इज़ गिवन 30 डिग्री. ओके. जब वो थोड़ी दूर इधर चलता है इसकी तरफ बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, मान लीजिए वो यहाँ इस पॉइंट से सी पॉइंट से वो यहाँ पे आ जाता है डी पॉइंट के ऊपर चलता हुआ, तब उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है और वो क्या बनेगा उस वक्त 60 डिग्री बन जाता है. ये एंगल 60 डिग्री हो गया. इसकी लेंथ वही है, हाइट ऑफ द टावर वही है 1.5. sorry, height of the boy. So given the name of the points A, B, C, D, E, F and here is point G. 1.5. This is also 1.5.
सो इट मीन्स यू फाइंड आउट बीजी, बीजी फाइंड आउट कर लेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीडी, यानी 30 से जब 60 एंगल हो जाता है वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो सीडी फाइंड आउट करना है। ओके, और सीडी इजकल्स टू ई एफ होगा। सो जहाँ पे ट्राइंगल लाई कर रही है, जहाँ पे एंगल लाई कर रहे हैं वो ट्राइंगल्स हमें यूज करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन हाइट ऑफ द बिल्डिंग ए बी इजकल्स टू 30 मीटर। हमने ए बी जो है वो हाइट बिल्डिंग पुट किया है, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड ए सी इजकल्स टू 1.5 meter, which is height of the boys. Okay, now find out BG, BG find out कर लेंगे आप। BG is equals to AB minus AG, AB minus AG. So value of AB is 30 minus AG is 1.5, then we get 28.5 meter. So B से G तक का ये जो डिस्टेंस आ गया it is 28.5 meter. Now in triangle जो दोनों एंगल्स, एक एंगल कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ई जी बी, इस एंगल को अप्लाई, आप यहाँ पे टी रेशियो अप्लाई करेंगे। सेकंड ट्रायंगल क्या बनेगी, एफ जी बी। सो इन ट्रायंगल ई जी बी एंगल अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। जनरली आपका टेंजेंट अप्लाई होगा पी अपॉन बी, यानी बी जी अपॉन में ई जी, ये बन गया आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ बी जी 28.5, ई जी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ई जी साइड 1030 इज 1/√3। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, वी गेट ई जी इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू में √3 मीटर। ओके, नाउ इन सेकेंड ट्रायंगल एफ जी बी, एफ जी बी, एफ जी में अप्लाई कीजिए यहाँ पे एफ जी बी, वही टी रेशियो आपका, ये एंगल यहाँ लाई कर रहा है, इस एंगल के अपोजिट साइड बी जी विच इज परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस इज एफ जी इजकल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो इट मीन्स टेंजेंट, हियर थीटा इज 60, सो यू राइट 60। वैल्यू ऑफ बी जी विच इज गिवन 28.5 एंड एफ जी फाइंड आउट करनी हमें, 1060 इज √3। Now you cross multiply FG multiply √3 is equals to 28.5, then FG is equals to 28.5 divided by √3, okay, meter. Now find out EF, EF is equals to CD, EF is the distance walking by the boys towards the building, building की तरफ जो चली गई distance है यहाँ पे। So EF is equals to EG minus FG, EG minus FG. Value of EG is 28.5 √3 माइनस में FG is 28.5 अपॉन में √3, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा हमें, √3 इज एलसीएम और √3 से ये आपका मल्टीप्लाई होगा, √3 इंटू में √3 3, यानी ये आ गया 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, देन वी गेट 28.5 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से, 3 5 जब 15, 1 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 8, ये आ गया 85.5 माइनस में 28.5 डिवाइड बाई √3, माइनस कीजिए 5 में 5 0 हो जाएगा, 15 माइनस 8 7, और ईयर 7 लेफ्ट, 7 में से 2 माइनस कीजिए आप 5 आ गया, 57 अपॉन √3। नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रेशनलाइजेशन बाय √3, √3 इंटू में √3, देन वी गेट 57 √3 अपॉन में 3, कैंसिल बाय 3, वी गेट 19। सो 19 √3 इज द डिस्टेंस वॉकिंग बाय द बॉयज टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जो डिस्टेंस चली गई है वो क्या आ गई, 19
3 मीटर। ओके, ये फाइंड आउट हो गया। सो ई एफ इजकस टू सी डी, ई एफ इजकस टू सी डी which is 19√3 meters. So distance traveled by the students towards the building is 19√3 meters.